धर्म मीन्स लॉ ऑफ नेचर. धर्म हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है. लाइफ की पार्टनरशिप में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ना हो तो बेटर है. बहुत सारे पुरुषों ने मेरे से झाड़ खाई उसमें, बहुत सारी विमेन ने मेरे से झाड़ खाई. थप्पड़ मारो, ठा थप्पड़ मारो. तो मदरहुड शुड बी अ डिसीजन. It should be a choice and a decision and not an accident. Hi, ma'am. Thank you so much for sparing your very, very precious time. I know that your days are filled with so many things that you have to do. So we really, really appreciate you taking this time out for us. Thank you. And as I said, today the person who's going to be most excited is my grandmother because she has loved you and adored you for as long as I remember. क्योंकि वो लाजपत नगर में रहती थी and आप जब आए थे दिल्ली and वो इतनी excited हो गई थी and उनकी तब की कहानियाँ ये थी कि अरे तुझे पता नहीं है एक है किरण बेदी, उन्होंने आए और उन्होंने सबको ठीक कर दिया. So she is very excited and I'm very excited for this chat. So happy for her. Yeah. I think she's going to be like, this is going to be a most awaited episode to watch. She sits every Thursday and waits for the episode, but I think this one she's going to wait for a little That's extra. Nice. That's lovely. So, ma'am, I just want to, of course, start from the beginning. And I know you've answered this question many times, but it still intrigues me because, when we're younger and we're talking about your generation, we're going back so many years. Everybody has dreams, कि chalo, I'm going to become a doctor or I'm going to become an engineer or, at that point in time, far more feminine professions were, considered viable options for women. Yeah. आपने IPS का कैसे सोचा? Look, it was not IPS what was growing in my mind. मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं पढ़ के पुलिस ऑफिसर बनूं. लेकिन ये सोचा था कि मैं बहुत सेल्फ रिलायंट रहूंगी. Now self reliant means you can go anywhere what you do. Correct. To be self reliant, मैंने ये सोचा था I'll not go the way the crowd is. The crowd of women is. Yeah. I'll not be part of the crowd. Yeah. I'll not be part of the households. Therefore, I'll be also a creator, a provider. So मेरे मन में यह था I will be a provider. And you cannot be a provider if you're not self-reliant. Correct. And to be self-reliant means you grow up in such a way that you make yourself self-reliant, which means you educate yourself, you skill yourself. And then you start asking yourself, okay, मैं कहाँ से अपने आप को provide करूँगी? Government service was my, business was not in my head. Those days of my times, you either could be a doctor or an engineer. I was not a doctor oriented. Not that I didn't love the profession because I was a sports girl. Correct. Tennis, I remember. Right? So for sports, you need science, you need evening for experiments. Correct. Science, I was playing tennis at that time. Correct. Similarly for engineering, mathematics was not in my head. So machines was not in my head. Human beings were in my head. Serving human beings. That's why medical profession would have gone along with me. But I was a player on the court in the evening and not in the school. Correct. So to be self-reliant was my goal. That all my life, God be with me. I'm not going to ask anybody for anything. I'm not going to be like the crowded women who are always asking for help. Or if they are having something of their own, they're taking permissions to deal with it. Yeah. I said, no. Yeah. Neither any permission, nor any asking. Yeah. On the contrary, empowering others to enjoy themselves. So that was my goal, which gradually took me to, because of sports backgrounds, etc., which the Wikipedia says that I was an NCC cadet and a sports girl. So sports, NCC, uniform, travel, adventure, all this came because of self-reliance, courage, to be courageous, Correct. to be bold, to be decision-making. So all this comes with it. You want to be self-reliant. But if you grow up to say, okay, koi baat nahi, parents will provide or somebody else will provide, then you move accordingly. Yeah. You move accordingly. Nothing wrong or right. I'm not being judgmental. But this is who I was.
very clear in my mind, I shall not be self-reliant. Hmm. God be with me. Hmm. मुझे अपना कमाना है, अपना खाना है, दूसरों को भी देना है. बिल्कुल. That way. And that spirit for that time was like unheard of. मतलब you were an outlier for your generation for sure. And you know what's interesting is कि हम जब भी सोचते हैं ना about high risk taking या we think about physically challenging roles, तो हमें लगता है the obvious choice is a man for that role. You know, when you decided to be in the police services, what was the reaction of people around you? Did they question that decision, or was the environment in which you were There was a operating? lot of joy. There's a curiosity and there was joy Okay. and there was fear and there was apprehension. कोई कहेगा ये क्या बनेगा, हाँ चोर इसको ठोक देगा, हाँ और कोई कहेगा बड़ा चंगा हुआ है हमारी बेटी, correct. शुक्र है बेटी भी हमारी आई. So there was a divided response. And was Some were very excited, some were very happy, yeah. some were very apprehensive. दोनों And- चीजें. And the response was divided even when you went into the sort of IPS and you with your male colleagues. Was that there as well? After all, they are the same department, they are the same community. Yeah. वो भी apprehensive थे. हाँ अब क्या होगा? हाँ. अब इसको सल्यूट कैसे करेंगे? अरे औरत को सल्यूट करना, ये तो हमारा नहीं काम. हम तो कभी औरत को सल्यूट नहीं करते. औरतें हमें नमस्ते करती हैं, झुकती हैं. हाँ. ये इसके आगे हम कैसे झुकेंगे? ये तो मैडम को सलाम करना पड़ेगा. ये तो झुकेंगे कैसे? लेकिन झुकना पड़ा क्योंकि सीनियर थी मैं. सो जब सीनियर रही, लेकिन सीनियरिटी की वजह से नहीं झुके. ग्रेजुअली वो झुके क्योंकि मैंने उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी. आई बिकेम देयर प्रोवाइडर. मैं उनको लीडरशिप देने लग गई, सपोर्ट देने लग गई, केयर देने लग गई, उनकी बात सुनने लग गई, उनका वेलफेयर देखने लग गई, उनकी फैमिली के बारे में पूछने लग गई, उनको घर भेजना शुरू कर दिया. कह रहे घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी वेट कर रहे हैं, 10 दिन के बाद एक छुट्टी. आई वॉज द ओनली वन हु वाज सेइंग 10 दिन के बाद घर जाओ, घर जाओ. नहीं नहीं मैडम यहीं रह, नहीं घर जाओ. तो ये क्या, ये कौन सी आई? हमें तो कोई कहता ही नहीं कि घर जाओ. हमारे डिपार्टमेंट में तो घर का कोई शब्द ही नहीं है. घर तो एक कमजोरी समझी जाती है. मेरे लिए एक घर एक ताकत थी. See, because I was different. So मैंने किसी को कॉपी नहीं किया. जो मैं थी वही रही, और जो मुझे अच्छा लगता था उनके लिए भी अच्छा सोचती थी. So I think that's where they started to salute me. Now they said, I think somewhere said, शुक्र है हमारे पास ऐसा ऑफिसर भी आया जो हमारे बारे भी सोचता है. करेक्ट. क्योंकि एम्पैथी थी ना आपकी towards them, towards their family, and then as a result of that empathy you started commanding the respect. Exactly. जब naturally आने लगा फिर. See, empathy नहीं थी. I was a woman. And woman is born with empathy. I was by pure woman, but of independent woman, a strong woman who thinks about others, thinks about others' welfare, not a selfish woman. A woman who had plenty to give. I was in a position to give. तो मैंने डट के दिया. I loved giving. In fact, the strength of my profession is I have so much to give, so much to care. Where does it come from, this willingness to always want to give? Because your choices in your career have always only reflected this, that you just want to do for people. Yeah. तो where does it come from? कि मतलब selflessly आपने बस अपना पूरा life लोगों के लिए ही दिया है. Because I love giving. और मैं जितना देती हूँ उतनी मुझे खुशी मिलती है. मुझे लेना नहीं अच्छा लगता, मुझे देना अच्छा लगता है. और अगर कोई मुझे देता है तो मैं सोचती हूँ अभी ये किसको दूंगी, मेरे लिए ये आ गया, ये किसको दूंगी, किसके लिए ये अच्छा है. सो मेरे पास घर में गिफ्ट कबर्ड है, और उसमें जो मुझे गिफ्ट्स मिलती हैं, काम की चीज है, मैंने संभाली होती हैं. मेरे स्टाफ का किसी का बर्थडे है, कोई वेडिंग है या कुछ है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको गिफ्ट देती हूँ. सो कई बार खरीद के भी देती हूँ. जो मुझे अच्छा लगता है मैं मार्केट से खरीदती हूँ, उसको देती हूँ. सो आई लव गिविंग. ये आया घर से. मेरी अपब्रिंगिंग, जो हमारे घर का माहौल था, वाज आल्सो गिवर. मेरे नाना वाज आल्सो गिवर. दे वर फिलैंथ्रोपिस्ट. माय ग्रैंडपेरेंट्स, मम्मी साइड वर गिवर्स. धर्मशालास. माय ग्रैंडफादर, फादर साइड हैड धर्मशालास. So I have come from a family of philanthropists, both from mummy and daddy side. दोनों देकर खाते थे. So father में अभी भी we have पेशावरिया धर्मशालास. उन दिनों धर्मशालास बनती थी.
पिलग्रिमेजेस बनते थे क्योंकि लोगों को ठहरने की जगह चाहिए, तो पिलग्रिमेजेस, सो धर्मशालाज फ्रॉम माय डैड साइड एंड पिलग्रिमेजेस अदर्स फ्रॉम, और दान, खूब सारा दान देती। मेरे नाना जी यूज्ड टू बी फीडिंग पीपल एंड पीपल बिफोर दे वुड फीड देमसेल्फ। आई थिंक इट केम इनटू माय जीन्स, it came to my family of givers. That's so wonderful. And you actually take so much from your grandparents. Like, you know, we really undervalue just how much impact. Of course, our parents raise us, they nurture us, and they impact how we think. Environment बहुत हर्ट करता है। बहुत फर्क पड़ता है। upbringing का अगर आपका environment spiritual है, giving है, honest है, if God fearing है, दूसरे का भला सोचने का, तो आप वैसे ही ग्रो करते हो। और अगर आपका एनवायरनमेंट सेल्फिश है, दूसरों से हक छीनना है, कॉम्पिटिटिव ही है, कोलैबोरेटिव नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर आप खुश्क बड़े होते हो एंड सेल्फिश होते हो। पता नहीं खुश रहते हो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेल्फिश व्यक्ति का खुश रहना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। हाँ, उसकी नीड्स बढ़ती रहती हैं, किसी से लिया आप किसी और से कंटेंटमेंट कम्स इन गिविंग। Correct. Agreed. And you know, one of the most intriguing parts of your journey for me, especially your IPS journey, has been कि आपने literally तिहाड़ जेल में विपासना शुरू कराया। And मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये भी किसी को आइडिया आएगा। And I really wanted to ask you कि as a spiritual person, आपने इसके बारे में भी बात की है पहले, how do you view a convict or a criminal? क्या आप उसमें देखते हो कि स्कोप ऑफ एवोल्यूशन है, तो आप उसको ह्यूमन बीइंग जैसे देखते हो सजा जब उसको सुनाई देती है उसके बाद, या आप उसको देखते हो कि यू नो ओके दिस पर्सन नाउ डिजर्व्स द पनिशमेंट दैट ही हैज गॉटन और शी हैज गॉटन? तो हाउ डू यू सी कॉन्विक्ट्स और क्रिमिनल्स एंड व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड स्टार्टिंग द विपासना? You asked me two questions. हाँ जी। एक विपश्यना का और दूसरा how do I view a criminal? करेक्ट। I have looked at a criminal from two angles. One as a police officer and second as a prison officer. मेरी दो रोल्स आए। पहले मैं पुलिस ऑफिसर थी, फिर मैं प्रिजन में गई। करेक्ट। एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे नहीं पता था कि मैं प्रिजन में भी जाऊं, प्रिजन इंचार्ज भी बनूंगी। लेकिन जब एज अ पुलिस ऑफिसर उसको देखती थी तो ये सोचती थी कि मैं जानने की कोशिश करूं इसने क्राइम क्यों किया। अब क्यों का जवाब था क्राइम प्रिवेंशन में। किसने क्यों किया? ये ग्रीड थी, मौका था, बैड कंपनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, लालच था, क्या था? ताकि मेरी जो क्राइम प्रिवेंशन की पॉलिसीज है, बीट सिस्टम है, क्राइम पुलिसिंग है, मैं उसमें ये चीज को डील कर लूं। मैं स्कूलों में जाती थी बच्चों को समझाने, यूथ को, क्योंकि मैं जानना चाहती थी रीजन क्या है इसका क्राइम का। करेक्ट। सो एज अ पुलिस ऑफिसर मैं उसका रीजन ढूंढती थी, लेकिन मेरा जो कानून उसको इन्वेस्टिगेट करना, अरेस्ट करना और सच बुलवाना उससे, मैं उससे हमेशा बात करती थी। मेरी आदत थी कि जब मेरे एज अ डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली पुलिस, तब मेरे पास जब ऐसा कोई मर्डर का आया या कोई भी सीरियस क्राइम का आया, मैं थाने में जाती थी जब वो लॉकअप में होता था, उससे पूछने के लिए कि तूने ये क्यों किया, ये भी जानने के लिए कि कहीं हमने गलत आदमी तो नहीं गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि मैंने ये देखा था कि जब मैं उससे बात करती थी मुझे सच बताता था। कचहरी में जाके कुछ भी बोले, मुझे सच बताता। कचहरी में तो बहुत लोग प्रेशर में भी दूसरों के भी ले लेते हैं, फिर माहौल बदल जाता है, तो मुझे सच बताता। अगर मान लो उसके पास से मैंने चाकू बरामद किया या वेपन बरामद किया, मैं डर सोच देखने जाती थी कि ये वाकई में इसका था कि कोई प्लांट तो नहीं कर दिया गया, क्योंकि प्लांटिंग भी उस वक्त माहौल था, बता था, वो एडमिट करता था, हाँ मैम मेरे पास था। तो मुझे ये अपने आप को तसल्ली होती थी, मैंने किसी को गलत गिरफ्तार नहीं किया। मैंने जो गिरफ्तारी की वो किसी से अन्याय नहीं हुआ। वो ये नहीं कह सकता पुलिस ने मेरे साथ अन्याय किया। सो दो चीजें, एक कि वाकई में इसने क्राइम किया और दूसरे से क्यों किया। सो एज अ पुलिस ऑफिसर मैं ये देखने जाती थी, और मेरी जितनी क्राइम स्ट्रैटेजीज होती थी एज अ डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस, वो उस अकॉर्डिंगली फिर चलती थी। अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी चलती थी। हमारा दिस वाज माय क्राइम प्रिवेंशन प्लान। डिटेक्शन तो हो गई। जब मैं प्रिजन के का काम करने गई, तब मेरा काम था ये नहीं पता करना कि इसने किया क्यों, लेकिन ये कि इसको मैं सुधारूं कैसे। अब ये जहां से जब जेल से जाए
तब दोबारा वापस नहीं आए। चांस ऑफ रिडेम्पशन। हाँ, इसको रिफ्लेक्ट कराऊं, महसूस कराऊं, एक खुद पश्चाताप करे मेरे से गलती हो गई। अब मैं उससे जाके ये नहीं पूछती थी गलती कर, वो क्यों करेगा मुझे। दैट वाज नॉट द स्टेज। दैट स्टेज वाज मैं इसको कैसा माहौल दूं जिससे ये दोबारा ना आए। और मुझे पता है माहौल क्या होता है, क्राइम प्रिवेंशन का, पढ़ना, स्किल लेना, राइट, लोगों का संस्कारी बनना, स्पिरिचुअलिटी, गीता पढ़ना या कुरान पढ़ना, कुछ भी पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ पढ़ो, संस्कार चीज सुनो, सुनो, देखो, महसूस करो माहौल में, तो सोचो अपने आप, महसूस करो। तो मैंने उसके लिए ऐसा वातावरण 10,000 प्रिजनर्स के लिए हमने क्रिएट किया जिसमें वो खुद ही रिफ्लेक्ट करने लग जाए कि उन्होंने गलती वाकई की। मुझे मत बोलो, अपनी आत्मा से बोलो ना। सो माई फीलिंग वॉज एट दैट टाइम ये अपनी आत्मा की बात सुने। तो विपश्यना आत्मा की आवाज को समझना, सुनना का एक माहौल था, ताकि ये ऐसे इंसान बन के जाए ताकि गलत संगत से भी बचे और गलत आदतों से भी बचे। तो और कोई चमत्कार नहीं था, ये 10 दिन का ध्यान लगाने का प्रोग्राम था, टोटल साइलेंस का था, जिसमें कि उनको ये अपने आप शिक्षा मिलती है। इट इज एन एक्सपीरियंस टू योर सेल्फ। वो लेक्चर नहीं था, इट वॉज इंट्रोस्पेक्शन, इट वॉज ऑल रिफ्लेक्शन। महसूस करना, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, खुद एक्सपीरियंस करो, अपने आप को देखो, अपना रास्ता खुद ढूंढो, अपने कर्म के ऊपर विश्वास करो, अपना कर्म ठीक करो, राइट थॉट, राइट वर्ड, राइट डीड, ये भगवान बुद्ध ने कहा। इसमें मैंने उनको ये, मुझे नहीं पता कौन किसका विश्वास कर रहा है, तो मैं किसी का धर्म बदलने नहीं यहाँ बुलाई, मैं उसकी सोच बदलने के लिए। तो मैंने सोच बदलने के लिए विपश्यना का किया और वो एक्चुअली चमत्कारी हुआ। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैंने पढ़ा भी था कि जो उस टाइम के सबसे अग्रेसिव क्रिमिनल्स थे और जो सबसे क्या कहते हैं एंग्री क्रिमिनल्स थे, उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ था उन कोर्सेज के बाद, बहुत हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। वो दे आर ऑन रिकॉर्ड ऑन द वीडियो, और CNN, BBC सब आए उस दिन, क्योंकि हिस्टोरिकल था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिजन्स इन द वर्ल्ड 1,000 प्रिजनर्स का मेडिटेशन प्रोग्राम हुआ इकट्ठा। फर्स्ट टाइम, हिस्ट्री हिस्टोरिकल है ना, पहले हुआ ना बाद में, अभी नहीं, अब दोबारा नहीं हुआ। सो बहुत उन्होंने BBC उन्होंने माइंड नहीं किया, कैमरा कहने कर, हम तो वेट कर रहे थे जब जाएंगे यहाँ से, गर्दन ढूंढेंगे मैजिस्ट्रेट की और उसको पकड़ेंगे और मारेंगे, उसको ये करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे, हम समझ आ गई। सो बहुत ने ये कहा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिल्म कॉल्ड डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना। वेरी इंटरेस्टिंगली मैंने ये भी पढ़ा था मैम कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपने रिलीजन में लिखा था ह्यूमैनिटी। हाँ, एंड आई थॉट दैट वाज सो फैसिनेटिंग एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने रिलीजन में ह्यूमैनिटी क्यों लिखा? क्योंकि यही तो थी मेरी रिलीजन। ह्यूमैनिटी तो हर एक रिलीजन, किसी धर्म के ग्रंथ को उठा लो, वो मानवता ही तो बोलता है। वो कोई भी नहीं धर्म बोलता मानवता को मारो, मानवता को दुखी करो, कोई भी नहीं बोलता। तो अगर आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं तो वो तो आप पे पहले शांति और मानवता सिखाते हैं। तो अगर आप उसी रास्ते पे चलो, आप धर्म के रास्ते पे चलते हो, विच इज धर्म मीन्स लॉ ऑफ नेचर। धर्म हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है, धर्म है कॉन्डक्ट, बिहेवियर, ये है धर्म। धर्म, ये धर्म हमने कर दिया, उसको जोड़ दिया हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई। नो, धर्म इज द लॉ ऑफ नेचर, और लॉ ऑफ नेचर तो ये नहीं कहता किसी को मारो, ये तो नहीं कहता। करेक्ट, ह्यूमैनिटी इज मानवता। दैट्स वंडरफुल एंड आई विल टेक दिस विद मी फॉर श्योर। मेरे को एक और जो इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना था, क्योंकि मैं एज आई सेड आई एम अ फैन, और मैंने इतनी इंटरव्यूज आपकी देखी और मेरी नानी भी इतनी बड़ी फैन है। यू नो, एज वुमेन, क्योंकि हम एक वुमेन लेड प्लेटफॉर्म रन करते हैं, चॉइस ऑफ पार्टनर आपकी लाइफ बहुत चेंज कर सकता है, you know, and it can really alter the course of your career also. तो in your opinion, एक तो कितना मैटर करता है choice of partner, and if somebody, the second part of the question is, if somebody wants to be an independent, courageous woman like yourself, what are the qualities that those women should seek in their partners? क्या ढूंढे? choice of partner जो है लाइफ को बदलता है। लाइफ बिफोर मैरिज और लाइफ आफ्टर मैरिज दोनों में बहुत परिवर्तन है, बहुत अंतर है। आपकी लाइफ तरक्की करती है, उन्नति करती है, खुश रहती है, सफलता प्राप्त करती है,
प्रोग्रेस करती है इफ यू हैव द राइट पार्टनर, एंड आपकी लाइफ को डुबो देती है या बुझा देती है अगर आपका रॉन्ग पार्टनर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर बुझी हुई पार्टनर है तो आप उसके साथ क्यों लटके रहे? क्योंकि उसके रीजन है कई, क्योंकि आप मदर बन चुके हैं। तो आप क्या करते हैं एज अ वुमन, अपने बच्चों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करते हो, लेकिन बुझे रहते हो। सो इसलिए लाइफ की पार्टनरशिप में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना हो तो बेटर है, मगर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर गलती हो गई, समझ में बाद में पता चला कि गलती हो गई, तो जितनी जल्दी पीछा छुड़ाओ उतना अच्छा है। पीछा छुड़ाओ, ये सब नहीं बोलते हैं, ये पीछा बहुत छुड़ाओ। अलग एडवाइस है। ये हाँ। पीछा छुड़ाओ। और अगर मदर भी बन गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अब और अगर आप वर्किंग मदर हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। और अगर पेरेंट्स की सपोर्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप मदरहुड से पहले पीछा छुड़ा लिया तो आप मुक्त हो गए, बिल्कुल। तो अब तो आजाद हो गए। दैट मीन्स आपकी सारी लाइफ फिर से खुली। फिर दोबारा में गलती मत करो, करेक्ट। दोबारा गलती मत करो। कमाओ, खाओ, बांटो, खाओ, मौज करो। ये आजादी और अपनी स्पेस और अपनी हवा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अपनी स्पेस, आजादी बहुत इंपॉर्टेंट है। घुट के जीने में तो क्या ही मजा है, ये तो कोई जीना ही नहीं हुआ। और हमारे देश में तो अक्सर सारी की सारी औरतें काफी हद तक घुट के ही जीती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, और फिर बच्चे हो जाते हैं एज यू सेड, तो फिर देन दे फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इंश्योरिंग के मैरिज वर्क। और अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शादी के बाद छोड़ देती है। क्यों छोड़ते हो? तुम्हारे आदमी ने तो नहीं छोड़ा, तुम क्यों छोड़ रहे हो? ओ नहीं, ये बेबी हो गया, बच्चा हो गया, तो पहले समझदारी से करना था ना, मम्मी बनना था। क्योंकि आपने देखा सपोर्ट सिस्टम क्या है, ना आपके पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम, ना तुम्हारे पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम। तो किस बात की जल्दी आपने? पहले सपोर्ट प्लानिंग करो, क्योंकि लाइफ इज जब आप एक लाइफ को जन्म देते हो, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। वो आपको जब तक वो व्यक्ति, सारी उम्र प्रोजेक्ट, चाइल्ड इज ऑलवेज अ लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो इसलिए कभी जल्दबाजी ना शादी में करो, ना मदरहुड में करो, नेवर। दिस इज सच प्रोफाउंड एडवाइस, स्पेशली क्योंकि इतनी गर्ल्स जो और गलती में मत जियो। हाँ, जो अपनी 20s में है, उनको इतना सोसाइटी से प्रेशर फील होता है कि सब आसपास बोल रहे शादी करो, क्योंकि फिर बच्चे कब तो करोगी? सोसाइटी से शादी करो ना। सोसाइटी कौन फैसला कर? आप फैसला करोगे। आप जीना तो आपने है, बिल्कुल, या आपकी जिंदगी है। बिल्कुल। आई कंप्लीटली एग्री। एंड यही वैल्यू सिस्टम, आई एम श्योर कि यू नो टू हैव सच अ प्रोग्रेसिव मॉम, आपने यही वैल्यू सिस्टम फिर अपनी डॉटर में भी डाला होएगा, और अपने आसपास के कॉलीग्स को भी यही सिखाया होएगा। क्योंकि हाउ वी आर नर्चर्ड एंड हाउ वी आर रेज्ड, जैसे जो आप वैल्यू सिस्टम बता रहे हो, मेरी मम्मी और मेरी नानी ने भी यही किया है। बोथ माई ग्रैंड मदर वाज ऑल्सो वर्किंग वूमन, वो लड़के काम पे गई हैं, लड़के पढ़ा है उन्होंने। कई औरतें तो कमाती फिर पैसा भी आके जॉइंट अकाउंट में डाल देती। ये सबसे बड़ी गलती। मैंने कई पुलिस ऑफिसर्स अपनी देखी है, यंग आजकल की रिक्रूट्स। मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा जब कमा के जाती हो, इतनी अच्छी सैलरी तो मिलती है, क्या करती हूँ? मैम वो जॉइंट अकाउंट में डालते हम। तो फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, बस में आने जाने के लिए पैसे दे देते हैं मुझे। दिस इज व्हाट दे डू। वैसे क्यों? जॉइंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो हिस्सा अपना अकाउंट रखो। बिल्कुल। घर मिल के चलाओ, वेरी गुड, लेकिन अपना हिस्सा तो अपने लिए क्यों मांगते हो? आपके हस्बैंड आपसे मांगते हैं? हाँ। नहीं मैम, वो अपनी मर्जी से उठा देता है। तो मैंने कहा तुम क्यों मांगते हो? तुम फिर मांगते रहते हो। अब पढ़ भी लिया, कमा भी लिया, फिर से हाथ पर आ ले हो, क्या फायदा तुम्हें पढ़ाने का? बिल्कुल। सो दे स्टिल इकोनॉमिकली डिपेंड। वो है ना सिंड्रोम है, ये इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। हम बंदिश, प्रिजनर ही रहे, हमको आजाद होना नहीं आता, आजाद रहना नहीं आता, आजादी का मीनिंग नहीं समझते। आजादी का मतलब नैतिक आजादी होता है। गलतियां करने के लिए नहीं आजादी हम बात कर रहे, हम मॉरल एथिकल लाइफ के लिए आजादी मांग रहे। उसके लिए किस बात की अप्रूवल मांगे? बिल्कुल मैम, पर ये प्रॉब्लम का क्या समाधान है? क्योंकि वर्किंग वुमेन के लिए, जैसे आपने बताया, वी वर डिस्कसिंग मदरहुड, कोई रिलायबल सिस्टम तो नहीं है अपने बच्चों की केयर टेकिंग के लिए। आपको फैमिली पे डिपेंड करना पड़ता है, या तो फिर आप काम में अपनी बैक सीट ले लेते हो करियर में, क्योंकि अब आपने बच्चा कर लिया। तो मतलब हाउ डज वन नेविगेट दैट? इतनी वर्किंग मॉम्स जो न्यू मॉम्स, सो मदरहुड शुड बी अ डिसीजन, इट शुड बी अ चॉइस एंड अ डिसीजन एंड नॉट एन एक्सीडेंट। I agree.
सो क्योंकि ये आपकी लाइफ से इट अफेक्ट्स द वुमन द मोस्ट. Yeah. It affects fathers also, but not biologically Yeah. so much as biologically it changes the life, mindset, the body, everything of the woman. और उसका काम भी इफेक्ट करता है क्योंकि वो क्योंकि द चाइल्ड इज मोर कनेक्टेड विद द मदर. Correct. वो माँ मांगता है. फर्स्ट तो पहले फीडिंग करते हो आप. फीडिंग से बच्चा आपको ही पहचान रहा है, आपको ही देख रहा है, आपसे ही लिंक हो रहा है, आपका ही हाथ चाह रहा है, आपका ही प्यार चाह रहा है, आपकी न्यूट्रिशन ही चाह रहा है, क्योंकि आप ही दे पा रहे हो. ये नेचर ने ऐसा हमें बनाया है. उसके बाद ग्रोथ में भी वो आपको ढूंढता है. माँ का हाथ मांगता है. वो डैडी से भी प्यार करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दोनों से प्यार करता है, वो दोनों चाहता है, लेकिन माँ को माँ मांगता है. जहाँ हाय माँ बोलता है. सो इसलिए क्वेश्चन इज फर्स्ट 4 years of the child he needs mother and father, but mother more. Correct. So इसलिए अगर फैमिली सपोर्ट है तो उस फैमिली की सपोर्ट की कदर करो. Please respect your family support and value the presence of any elder in the family. You need them. Yeah. Just as they need you, you also need them. I agree. Please see that तुम्हारा child is looked after. उसके बाद डे केयर भी है. You can go to good daycare centers. And then अगर नहीं संभाल पा रहे, आपका transferable jobs है, then look for a boarding school. And put the boarding school, but you don't have a choice. या day boarding school, जहाँ बच्चे को आप पिकअप करें after the day is good. So, मगर हमारे पास day boarding schools ज़्यादा है नहीं. So इसलिए, so you will have to therefore plan. That means plan. What will happen? What do I do after I become a mother? Yeah. Who will look after? कौन look after करेगा? किसकी support system है? कहाँ सपोर्ट सिस्टम है? क्या मेरा वर्क सपोर्ट करेगा? मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी? क्या मेरा नेबरहुड सपोर्ट करेगा? मेरे पास रिसोर्सेज हैं करने के लिए? ऑल दिस शुड बी पार्ट ऑफ द मदरहुड प्लानिंग. It has to be a very conscious choice. And then nutrition. Yeah. Your health care. During your pregnancy, nutrition is very important because that's the health of the child also. Your thoughts, mind, body. Even your mental thoughts have a bearing on the child. Yeah. अगर आप spiritual आपके मंत्र है, आपकी पूजा पाठ है, आप अच्छी बात सोचते हैं, it impacts the child. Yeah. The womb is listening to you. So therefore, कई बच्चे बर्थ पे ही बड़ी फास्टर कई जगह बड़ी अच्छी सोचते हैं, सोच उनकी अच्छी है. It's actually learned from the womb, from the pregnancy. Yeah. When the child is growing in the womb. So the pregnancy नहीं अपने आप हो जाएगा. Even the womb is listening. Yeah. It's feeling. It's part of the. You see, it's like right. Nutrition is even yoga for during pregnancy is very important. कौन सा योगा करना है ये योगा टीचर आपको बताएंगे. No, I agree. And it's not just the first 3-4 years. मतलब जब हम work life balance की भी बात करते हैं, you've been a working mom all your life. I've had a working mom all my life. तो हम सिर्फ सक्सेसफुल women से ही पूछते हैं how do you balance home and work. आदमियों से तो हमने कभी नहीं पूछा. Yes. आदमियों से हम ये भी नहीं पूछते कि आपको पता है कि आपके बच्चे की क्लास टीचर का नाम क्या है. We don't even ask that question. So the expectation of delivering to a child primarily actually rests on a woman, even though the child needs both इतना parents. शुक्र है कि फादर के पास टाइम मिल जाए बच्चे का से खेलने का. हाँ. परवरिश नहीं, खेलने का समय मिल जाए. I agree. और खेलने के लिए वो पहले वो टीवी देखेगा, अपने मैसेजेस करेगा या डिनर्स पे जाएगा या वो बैक टू वर्क है. उसका वर्क उसके लिए इतना डिमांडिंग है, प्रेशराइज टू बिकॉज ही इज अ ब्रेड अर्नर. वो बच्चे से खेल ही ले तो बहुत है. बच्चे को गोद में ही बैठा ले तो बहुत है, लेकिन गोद में ही बैठा के टीवी देखेगा नहीं, खेलेगा, उसको बचाएगा, बोलेगा, उसको स्टोरीज टेलिंग करेगा. उसके दे डोंट हैव द टाइम. टुडे पेरेंट्स डोंट हैव द टाइम एंड मदर इज बिजी इन सेटिंग द हाउस राइट. Father is not talking to the child. Yeah. So the parents who talk to the child, rather than only watch the television, do something else along and not be distracted, those children are better. And child needs both, mother and father. I agree. Father का अपना रोल है, mother का अपना रोल. बिल्कुल, बिल्कुल. Another interesting part of your journey, ma'am, and मेरी actually बहुत lasting memory है इसकी, कि मैंने आपको देखा था आपकी कचहरी पे और वो मुझे शो इतना इंटरेस्टिंग लगता था. मैं वाकई उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करती थी. एंड आई कांट नॉट हैव दिस एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन कि ऑफ कोर्स सो मच ऑफ योर लाइफ एंड योर करियर हैज बीन डिसीजन मेकिंग. you've had to own and take
decisions that were high risk very quickly and rapidly. You've not had time to process in your career, आपके life में, कि मैं सोच समझ के बहुत बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके डिसीजंस लूँ, आपको बहुत क्विक डिसीजंस मेक करने पड़े. सो इवन इन अ शो लाइक दैट, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? आपको कभी ऐसे लगा कि ये मैं और शायद इसको पनिश करना चाहती थी या इसको कम दे दी, या क्या था वो एक्सपीरियंस आपका? वो शो बहुत वेल डायरेक्टेड था, वेल रिसर्च था. वो सिद्धार्थ शो बासु का बहुत अच्छा था. सिद्धार्थ बासु का था प्रोग्राम. बहुत रिसर्च था, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड था, वेरी वेल आइडेंटिफाइड था. और उससे पहले हम लोग काफी काम करते थे केस के पहले, सुनने, अंडरस्टैंड, उसको सुनते नहीं थे, विक्टिम्स को और एक्यूज को नहीं सुनते थे, लेकिन Summary. उसकी दोनों की कहानी समझते थे, इसकी बैकग्राउंड को समझते थे, लॉ को अंडरस्टैंड करते थे, लॉयर्स हमारी टीम में होते थे. सो हम लोग पहले उस केस को समझते थे अपने आप के लिए, लाइक जैसे जज केस फाइल को पढ़ता है, Yes. ऐसे हम लोग केस फाइल को अच्छी तरह समझते थे, ताकि टाइम, छोड़े टाइम में हम आपको सब कुछ दे दें. तो the credit goes to the team which was doing very good research. Like Siddharth Basu was the director, producer, whatever he was, and he had a very good team of legal advice. But uske baad we also had a very, and it was minimum edited, क्योंकि और शो ये था कि उसको बिना स्टॉप के चलना है. बट उसके बाद जब वो मेरे सामने आते थे, वो मेरा नेचुरल था, क्योंकि मेरा यही तो काम था. मेरा यही तो काम था, दोनों की सुन के बात करना. That's all. और कई बार फाइल में कुछ और होता था, निकलता था कुछ, सोचा था कुछ, निकला कुछ, उसको हम लोग को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था. प्लस फिर जब आप उनको देखते हो तो थोड़ी आपकी इंस्टिंक्ट में भी आपको कोई फीलिंग आती होगी ना, कि यहाँ पेपर पे कुछ लिखा है बट कुछ फीलिंग अलग आ रही है, इंट्यूशन अलग आ रही है. बहुत सारे पुरुषों ने मेरे से झाड़ खाई उसमें, बहुत सारी विमेन ने मेरे से झाड़ खाई. When they try to tie, झूठ बोलने की कोशिश की. और आपने बहुत सारी औरतों को उसमें बोला भी काम करने के लिए, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आप बोलते थे कि तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, सारा प्रेशर उस पे डाल रही हो हस्बैंड पे, नौकरी लो. So दोनों ने झाड़ खाई अकॉर्डिंग टू दी. पॉइंट वाज जस्टिस. हमने हर केस में जस्टिस करने की कोशिश की, किसी का साइड नहीं लिया. We didn't look at man or a woman. We looked at who was at fault. Correct. मेरे इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग हिम दैट आई एम मीटिंग यू टुडे, तो उन्होंने बोला आप प्लीज किरण मैम को बोलना आई लव द वे शी सेज कानून. द वे शी सेज कानून इज वेरी, it's very memorable. So ma'am, we have reached the end of our podcast, but हम हर गेस्ट से ये सवाल पूछते हैं, और क्योंकि आप इतनी एक्टिव लाइफ जीते हो और आपकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और शो का नाम आफ्टर आवर्स है, तो आप अनवाइंड कैसे करते हो आफ्टर आवर्स? आपको क्या करना पसंद है टू जस्ट रिलैक्स? मैं जो करती हूँ वही करती हूँ जो मुझे पसंद है. मैं दूसरी चीज क्यों करूँ? करेक्ट. अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं दूसरी चीज क्यों करूँ? ये सीजन का बेस्ट आंसर है. बिल्कुल. तो बात सिंपल, मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है, दूसरी चीज को नो. खत्म. ठीक है. देयर इज नो अनवाइंडिंग. You do what you like. Yeah, that's it. So I enjoy what I do. I eat what I enjoy, and I do all that what I enjoy. What do you enjoy eating? Simple food when I'm hungry. अगर hungry नहीं है तो खाना नहीं खाना. Then I'll take light food. So I enjoy what I do, and I do what I enjoy. Two things. So unwinding का क्या मतलब? बिल्कुल. ये बहुत सही है. हम ऐसे ही रैट रेस में लगे हुए हैं, ऐसे ही जीना चाहिए. This is the way to live. अच्छा, एक लास्ट की छोटी सी गेम है, क्योंकि आप आपकी कचहरी पे थे, तो ऐसे हम थोड़े सिली से सिनेरियोज लेके आए हैं कि अगर आपको सजा सुनानी होती ऐसे सिनेरियोज में, तो आप क्या सुनाते? ठीक है. अगर कोई लेट आए मीटिंग या अपॉइंटमेंट पे, लेट है, पूछूंगी क्यों. ठीक है. पूछू कि अगर जस्टिफाइड रीजन तो बैठ जाओ. नहीं जस्टिफाइड रीजन तो वार्निंग भी दे सकते हैं, या कह सकते बाहर रहो. ठीक है. अच्छा, और कोई रात में बाजू में बहुत तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, बहुत लेट नाइट. तेज क्या हुआ? म्यूजिक बजा रहे हैं, तो मैं रुकवा दूंगी. मैं रुकवा दूंगी. मैं करती हूँ ऐसे. मुझे नहीं सोना क्या? आपने नहीं सोना तो आप मत सो, लेकिन मुझे सोने दो. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं. एक बारी ना, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत शादियां होती हैं, और एक बारात ने पूरी रोड चोक करी हुई थी, और हम ट्रैफिक में रात के 9 बज गए, ऑफिस से वापस आ रहे हैं,
तो वो डांस ही करे जाए, मैंने तो दूल्हे को घोड़ी से ही उतरवा दिया। That's मैंने कहा wonderful. मैं पुलिस बुला लूंगी, वेरी गुड। मुझे घर जाना है। जो आपने करा वो मैं भी करती। अच्छा, कोई अपने रेज्यूमे पे झूठ बोले तो, क्योंकि आपने ऑब्वियसली लोग भी हायर करे हैं, तो हाँ। फिर क्या है? नहीं, उसको बुला के पूछेंगे क्यों कर, हाँ, पूछेंगे क्यों, अगेन लिसन, फाइंड आउट क्यों किया तुमने। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, अगर तुमने इनोसेंटली कर दिया तो देखें कंसिडर, नहीं तो झूठे को वहीं पर ही रिजेक्ट करो। करेक्ट। और अगर कोई लड़की को देख के सीटी मारे, थप्पड़ मारो, ठा ठा थप्पड़ मारो, ताकि उसको याद रहे कि सीटी मारना। इनफैक्ट तुमको सीटी, मुझे बड़ी एलर्जी है सीटी से। मैं कई बार अगर लेक्चर दे रही हूँ बच्चों के, स्टूडेंट्स, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, और किसी ने सीटी मार दी, आई स्टॉप स्पीकिंग। ऐसे पहले सीटी मारने वाला बाहर चला जाए या माफी मांगे खड़े होके, बट मैं आपसे और नहीं बात करूंगी अगर आपने सीटी मारनी है। मजाल उसके बाद एक भी सीटी बजी हो। नहीं मैम, आपसे तो सब डरते ही होंगे, आई एम श्योर। नहीं, ये नहीं बात है, मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। हॉल में गए दूसरे स्टेट्स में, कई बार एप्रिसिएशन से भी होता है ये, हाँ करेक्ट, छेड़ने के भी होता है, दोनों हाँ, चीजें, हाँ। बट आई डोंट लाइक इट। आई एग्री। तो अगर मैं मान लीजिए बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ और उसमें किसी ने मार दी, लड़कों ने सीटी, या तो गेट आउट हो जाएंगे या वो रियलाइज करेंगे और उसके बाद सवाल ही नहीं उठता सीटी बजे। अच्छा, लास्ट में कि ये जो हमारे देश में हाँ। ये पान खाने के बाद गाड़ी खोल के जो पीक फेंकते हैं, वो आपको दिखे तो आप क्या सजा सुनाओगे? उसको फॉलो करूंगी, उसको बाहर निकलवाऊंगी, उसको कहेंगे इसको साफ कर। आपने वैसे क्रेन बेदी बन के अगर इंदिरा गांधी जी को टिकट दिलवा दी तो ये तो आप पक्का करोगे, आई एम श्योर। बट थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज सच अ फन चैट, मुझे इतना मजा तुम्हारे आया। क्वेश्चंस अच्छे थे। थैंक यू। थैंक यू, आई होप आपको भी मजा आया, और मैं कंटिन्यूअली आपसे इंस्पायर होती रहूंगी। और जैसे मैंने कहा, नानी तो मेरी आज क्लाउड 9 पे होगी ये देख के। थैंक यू।